Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the electric field lines and the electric flux. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISE and different state boards. This topic will also find useful for students who aspire to appear at various competitive exams after class 12. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. We have previously seen a source charge and a test charge. So source charge Q, capital Q, if I assume that capital Q is the source charge, then this is the charge by which an electric field is produced in its vicinity. ये वो चार्ज है जिसके कारण इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. Okay, we have a test charge. We call one charge a test charge. Suppose this is denoted by a small q. So this is an infinitesimal small positive charge जिस पर हम Q कैपिटल Q चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुए फील्ड का हम स्टडी करते हैं. ये चार्ज स्मॉल q इतना छोटा है कि इसके कारण इसके अगल बगल के परिवेश में, इसके अगल बगल के एनवायरनमेंट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है. सो दिस इज सो इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल जिसके कारण इसके आस पड़ोस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है. ओके, सो दिस इज सिंपली यूज्ड to study the electric field produced by this source charge. Okay, so if you place a test charge in an electric field, it will experience a force. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान Q है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना फोर्स लगेगा इस पर? फोर्स लगेगा इस पर Q इंटू E, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो चार्ज अगर Q है तो फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E. So because of this force, this test charge will move in the direction of the field. Clear? The path followed by a test charge in an electric field is in general curve. ये generally एक curve है. ठीक है? So this is the path along which the test charge will move. This is known as electric line of force और electric field line. इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट P हमारा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हाउ टू फाइंड इट? वी सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P. At this point Q, this point is Q, then the direction of the field at this point is along the tangent drawn at this point. Clear? So this is an imaginary concept first introduced by Michael Faraday to visualize the electrostatic field graphically. Graphically इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ये माइकल फैराडे द्वारा डिवाइस किया गया आइडिया है. हाउ टू डिफाइन इट? वी डिफाइन इट एज लाइक दिस. एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary curve, the tangent at any point of which gives the direction of electric intensity at that point. Electric line of force एक imaginary curve है जिसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है. In figure 1, we have shown various lines of forces emanating from different sources. So we may have different cases. देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q. Okay, so if the point charge is positive as shown in figure 1a, then any positive charge placed near it will experience a repulsive force. क्योंकि दो लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है. तो ये प्लस Q चार्ज यहाँ पर है, इसके आसपास इसके अगल बगल कहीं भी कोई
पॉजिटिव चार्ज होगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज therefore starts from it and goes up to infinity। सेकंड केस देखिए, अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा। ये चार्ज नेगेटिव है, as shown in figure 1b, this is 1b, again we have redrawn it here, then any positive charge placed near it will experience an attractive force। ये नेगेटिव है और इसके आसपास में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो इससे उसका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, so the electric lines of force due to a negative charge therefore starts from infinity and end at the negative charge। पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव में अंदर की ओर आता है। नेक्स्ट, इफ वी हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, एक यहाँ देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, देन द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज, जैसा फिगर 1c में आप देख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। सम ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स एमनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गो टू इन्फिनिटी। ये देखिए, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है यहाँ से निकल रहा है एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं जो एंड होते हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पर एंड हुआ, ये नेगेटिव में आ रहा है इन्फिनिटी से। ओके, so some of the lines of force come from infinity and end at the negative charge। यहाँ को ये दिखाया गया है, पॉजिटिव से लाइन्स ऑफ फोर्स शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पर, इन्फिनिटी से आ रहा है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ओके, now next comes you, here we have two positive charges placed nearby, then the electric lines of force क्या होगा, from both of them they will start from there and go to infinity। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं इससे रिपल्शन होगा, so therefore the lines of force will never cut each other or intersect each other, they start from there and being repelled by one another, both of them go to infinity। So this represents the repulsion between two like charges। ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होता है, नेगेटिव में ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से इस पर आता है, यहाँ इंटर करता है। ठीक है, they enter like this, they enter into the negative charge, they come from infinity and enter here। ये सब इसके अंदर की ओर होगा like this। ओके, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसको हम दिखाते हैं इक्विडिस्टेंट लाइंस ऑफ फोर्स से। तो देखिए यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये सब इक्विडिस्टेंट हैं, दो के बीच में दूरी जो है जो हर जगह बराबर है। सो दिस इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की दूरी समान नहीं है, दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट, दे आर डिफरेंट। यहाँ देखिए दूरी सबसे कम है, ये दूरी सबसे ज़्यादा है, ये दूरी दोनों के बीच में है। ठीक है, तो लाइंस अगर इक्विडिस्टेंट हैं ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, और लाइन इक्विडिस्टेंट नहीं है तो ये बता रहा है फील्ड जो है सो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब आइए देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये स्टार्ट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पर। सेकेंड इज द tangent drawn at any point on an electric lines of force give the direction of electric field at that point। ये पहले बता चुके हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स इज इन जनरल एक कर्व, उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट पर वो फील्ड की दिशा को बताता है। सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज थर्ड,
The closeness of the electric lines of force indicates the strength of the electric field. Lines of force जितने करीब होंगे इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में दूरी ज्यादा है मतलब फील्ड वीक है. The number of lines of force per unit area normal to the surface surrounding a point is proportional to the magnitude of electric field at that point. देखिए ये छोटा सा एरिया है हमारा, यूनिट एरिया है मान लो, लाइन्स ऑफ फोर्स ये हैं, ठीक है. तो इस एरिया के नॉर्मल कितने लाइन्स ऑफ फोर्स हैं? दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. यहाँ पर कोई पॉइंट एक है जिसको एरिया सराउंड कर रहा है, छोटा एरिया है ये यूनिट एरिया, और इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ठीक है. कितने एरिया है कितने लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इससे निकले हुए, इससे गुजर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट. लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या ज़्यादा है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम है तो वो कम है. नेक्स्ट, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइन ऑफ फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? देखो एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं आपको. एक हमारा लाइन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है, एक लाइन ऑफ फोर्स ये है. तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. पी पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो अब इस पॉइंट पर दो कर्व गुजर रहा है, पास कर रहा है, ये कर्व और एक हमारा ये कर्व है. तो दोनों कर्व पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं. इस कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं पी पॉइंट पर अगर, तो ये हमारा टेंजेंट ये है, ठीक है, ये टेंजेंट है. मतलब पी पॉइंट पर फील्ड की दिशा ये है. अगर इस कर्व पर खींचते हैं टेंजेंट तो टेंजेंट हमारा ये है. मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट दिशा ये है, मतलब दिशा फील्ड की ये है. तो एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, फील्ड की दिशा दो हो जा रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, विच हैज नो मीनिंग एट ऑल, विच इज एब्सर्ड. इसलिए दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेनेटिंग फ्रॉम its चार्ज कंडक्टर आर नॉर्मल टू इट्स सरफेस. लाइन्स ऑफ फोर्स की चार्ज कंडक्टर से निकल रहा है तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा. अगर नहीं है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं आपको हम, ये सरफेस का नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल क्या होता? नॉर्मल होता आपका ये होता नॉर्मल. इधर नहीं है, किधर है? फील्ड हमारा इस तरफ है. देखिए इधर अगर फील्ड है और ये सरफेस पर टेंजेंट खींचा गया है, कितना एंगल है? थीटा. तो E हैज ए component along the tangent and therefore the conductor will not remain an equipotential surface which is absurd. इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा इधर है तो चार्ज क्या होगा, इधर से इधर जाना शुरू करेगा, ठीक है ना. तो कंडक्टर में चार्ज का फ्लो तो नहीं हो रहा है, वो आइसोलेटेड कंडक्टर है, चार्ज का फ्लो कभी नहीं होगा उस पर. अगर फील्ड अगर नॉर्मल नहीं है तो इट विल हैव ए कंपोनेंट along the tangent and therefore because of this force, electric field क्या है? Force per unit charge. So because of this force the charges will move along the surface of the conductor which is absurd. Next property क्या है? Electric lines of force have a tendency to contract longitudinally. Along the length they have a tendency to contract, indicating attraction between opposite charges. Opposite charges में attraction है, इसके कारण they have a tendency to contract. कहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, खत्म होता है नेगेटिव पर. यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाके फिनिश होगा. तो they have a tendency to contract along the length. चाहता है दोनों करीब आ जाएं because of attraction, so they have a tendency to contract. दूसरी बात क्या है? repel each other laterally. laterally दूसरे को ये रिपेल करते हैं. जैसे एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, दूसरा लाइन ऑफ फोर्स
ये है, ये दूसरे को लेटरली मतलब ये इधर इसको रिपल कर रहा है और ये इसको इधर रिपल कर रहा है, क्योंकि दोनों शुरू हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, एंड हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज पर, तो दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो लेटरली एक दूसरे को रिपल करते हैं और लॉन्गिट्यूडनली दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। The electric lines of force can never form closed loops. क्लोज लूप कभी नहीं फॉर्म करता है ये, मतलब क्या हुआ, ये चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ से चला और फिर आके यहीं पर खत्म हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। शुरू होगा पॉजिटिव से, खत्म कहाँ पर होगा, नेगेटिव पर, ठीक है ना, ये पहले बता चुके हैं आपको हम कि लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव पर अंत होता है। उसी तरह नेगेटिव चार्ज यदि है तो शुरू होगा पॉजिटिव से, शुरू होगा कहीं से और नेगेटिव पर खत्म होगा। ये नहीं कि नेगेटिव शुरू हुआ और नेगेटिव पर अंत हो गया, ऐसा नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। We will now see what is electric flux. We treat a small area as a vector. Okay, so if the area is dA, vector area is vector dA. It is defined as a vector whose length is proportional to the area dA. वेक्टर का लेंथ क्या है, उस एरिया के प्रोपोर्शनल है। ओके, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया dA and its direction is outward normal to the surface as shown in figure 2. See here, this is our surface. I take a small area on the surface. This surface area is dA. So this is a vector. वेक्टर की लंबाई क्या है, प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और इसकी दिशा क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड इट। सो सपोज दिस इज अ सरफेस, ओके, आउटवर्ड कहाँ होगा, इसे नॉर्मल, देखिए ये मान लो कर्व सरफेस है, तो ये इसका रेडियस हुआ, मान लो ये जा रहा है नॉर्मल, मतलब इट इज अलोंग द रेडियस आउटवर्ड। तो ये दिशा है वेक्टर dA की, नॉट इनवर्ड, इनवर्ड नहीं, ये आउटसाइड, नॉट दिस। ओके, सो द फ्लक्स ऑफ the electric field through the elementary area dA is defined as the dot product of the electric field and the elementary area dA. The small flux or the small electric flux passing through the elementary area dA is given by the dot product of electric field and the vector area dA. So this is written as d phi is vector E dot vector dA, and this is E dA cos theta, where theta is the angle between E and vector dA. So the total flux, ये flux जो हुआ, so small area dA के through हुआ. So the total flux through a finite area is given by the integral of equation 1. आप जानते हैं कई छोटे छोटे एरिया से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा total flux passing through the entire area. So phi will be, total flux phi will be integral of d phi and this is E dA cos theta. यहाँ से देखिए क्वेश्चन 2 से, for a given area and for a given electric field, phi will be maximum when cos theta is maximum. Cos theta का maximum होता है when theta is 0. Theta 0 का क्या मतलब हुआ यहाँ, electric field E and the vector area dA are parallel, so that the angle between them is 0 degree, and so cos theta is equal to 1. And this will be minimum when cos theta is minimum. मिनिमम वैल्यू कितना है cos थीटा का, 0. मिनिमम वैल्यू का मतलब इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन -1 और +1. मैग्नीट्यूड जो है इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है, 0. दिस विल बी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. ओके, सो द आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड लूप बॉडी इज टेकन एज पॉजिटिव and inward flux is taken to be negative. मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे फ्लक्स होके
जा रहा है, निकल रहा है फ्लक्स होके यहाँ से, और ये इससे पास कर रहा है इधर। ठीक है, तो देखिए ये फ्लक्स इस सरफेस से, ये क्लोज बॉक्स है, इसके अंदर होके जा रहा है ये, तो ये जो है सो निगेटिव हुआ, बिकॉज दिस इज गोइंग इनटू दी सरफेस, और ये सरफेस से बाहर जा रहा है, तो ये हुआ पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। इंटरिंग इनटू द सरफेस is negative and going out of the surface is taken to be positive. So electric flux is a real scalar physical quantity whose SI unit is Newton per Coulomb meter square or volt meter. Volt is the unit of potential and Coulomb is the unit of charge. So dimension of the electric flux can be derived as follows. We have electric field E equal to force upon charge. This is the force per unit charge. फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t का पावर -2, q इज इक्वल टू i इंटू टी, बिकॉज द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज i इंटू टी, तो वैल्यू कितनी सी होगी, ml t का पावर -3 i का पावर -1। यहाँ से देखिए यू हैव फाई इक्वल टू e इंटू ए, ई कितना हो गया आपका ml t -3 i का पावर -1, एरिया कितना, डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर, so this is ml cube t का पावर -3 i का पावर -1। okay, so from equation 2 we can define the electric field in terms of the electric flux। कैसे निकालेंगे, when theta is 0 we have d phi is equal to EDA, so that E equal to d phi upon dA। so the electric flux at a point may be defined as the flux passing normally per unit area surrounding the point। if dA equal to 1, electric field is simply equal to d phi। ठीक है ना, यहाँ देखिए if dA equal to 1, then E equal to d phi। so the electric flux at a point may be defined as the electric field at a point, electric field, this is your field at a point may be defined as the flux passing normally per unit area surrounding the point। it comes from this expression here, we have shown you this here। okay, so in this lecture we have seen what is electric field lines, what are their properties, what is dimension formula, what is electric flux, and how you can define electric field in terms of flux। I assume you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest। Till then, goodbye।